Namaste बच्चों, welcome back to Bhardwaj Gurukul Exclusive Study Academy, your one-stop destination for ICSE class study material. Today we are going to simplify an important yet tricky chapter from ICSE class 10th Mathematics, share and dividends. This chapter is crucial because it not only appear in board exam but also help you understand real world finance concept. We are learn the concept formula and some easy trick to solve problem quickly. If you are new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for more ICC study material. इस वीडियो में हम इसका कंसेप्ट, सूत्र और इसे जल्दी हल करने का ट्रिक सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं एक सीक्रेट भी बताऊंगा जिससे आप सवाल कुछ सेकंड में हल कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो बैंकिंग चैप्टर्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फुल चैप्टर एक्सप्लेन go to I button. Stay till the end for some expert exam tips. Let's get started. Share and dividends. Share and dividends. In this video, we will cover what are share and dividends. Important terms like nominal value, market value, and dividend calculation. Solve board exam question with easy trick. Bonus tips for scoring full marks. Stay tuned till the end for helpful exam strategy. Let's begin. Point to remember what are shares. A share represent a unit ownership in company. By purchasing shares, you become a partial owner of that company. जो भी आप शेयर करते हैं आपके पास ओनरशिप होता है उस कंपनी में। की टर्म्स टू रिमेंबर, नॉमिनल वैल्यू जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, the original value of one share, like for example rupees 10, rupees 100. Market value, the price at which the shares is currently being sold in the market, वो वैल्यू जो मार्केट में उस शेयर का है। Dividend, the profit given by a company to its shareholder, usually expressed as a percentage of the nominal value. जो कंपनी नॉमिनल वैल्यू पे प्रॉफिट शेयर करती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। The original value of a share is called its face value, nominal value, printed value. It is fixed by the company or industry. ये तीनों नाम एक ही से रिलेटेड है, उसे फेस वैल्यू बोल दीजिए, नॉमिनल वैल्यू बोल दीजिए या प्रिंटेड वैल्यू। क्वेश्चन में अगर ये भी लिखा है तो हमें यही समझना है कि ये this price of a share in the market is called market value. It keeps change with time. ये समय समय पे चेंज हुए, it may increase or decrease. वो बढ़ भी सकता है, घट भी, can be smaller or greater than the face value. वो फेस वैल्यू से बड़ा है, छोटा। The profit which a shareholder gets for his investment from the company is called dividend. The dividend is always given by the company on the face value of the share, irrespective of its market. The dividend is always expressed as percentage of the face value of a share. If market value of a share equal to face value of a share, the share called at par. If market value of a share greater than face value of a share, जो मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से बड़ा हो, द शेयर इज कॉल्ड एट प्रीमियम एंड अबव पार। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर स्मॉलर देन फेस वैल्यू से छोटा है, द शेयर इज कॉल्ड एट डिस्काउंट और बिलो पार। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम गो थ्रू होंगे। टोटल फेस वैल्यू अगर हमें निकालना है इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। एनुअल डिविडेंड या हम बोल रहे डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड जो परसेंट है इनटू टोटल फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। बाय द वे, अगर शेयर जो परचेज किया गया हो है ना वो कंपनी से किया गया हो, एंड अगर मार्केट से किया जाए तो नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, है ना। ये तब अप्लाई होगा जब परचेज कहाँ से किया गया, मार्केट से किया गया। रेट ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न बोल, yield on investment is equal to, बात तीनों में एक ही अगर क्वेश्चन पूछता है इन तीनों भाषाओं में तो आपका रेट ऑफ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट याद है जिसमें रेट की बात होती है, इक्वल टू डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट किया गया उसमें इनटू 100। प्राइस ऑफ ए शेयर, डिविडेंड अपॉन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर। अब यहाँ से शेयर एंड डिविडेंड्स हम कुछ एग्जांपल एक्सरसाइज से ही करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच ऑफ इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। इस शेयर ₹20, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 60 दिए हुए हैं, रेट ऑफ डिविडेंड 9%। फाइंड ऑन वन शेयर, है ना, डिविडेंड ऑन वन शेयर 9% ऑफ ₹20
20 इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे फर्दर एंड वी गेट ₹1.8 जो डिविडेंड होता है 1 शेयर पे होता है। तो डिविडेंड ऑन 60 शेयर पे कितना होगा? फर्दर पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वी गेट ₹108। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड, 8% डिविडेंड दे रही है टू द शेयर होल्डर। एक मैन रिसीव, कितना रिसीव किया इन्होंने? 2840 एज इज डिविडेंड, उनको मिला एज ए डिविडेंड प्रॉफिट के तौर पे। फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज, तो क्या दिया है? डिविडेंड दिया है हमारा 2840 एंड रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया है? 8%। लेट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बी ₹X, हमने मान अकॉर्डिंग टू गिवन दैट 8% ऑफ X, जो नॉमिनल वैल्यू से 8% प्रॉफिट दे रहा है। तो इक्वल टू कितना है ना 2840 क्वेश्चन। तो हम पुट द वैल्यू करेंगे एंड X की वैल्यू हमें प्राप्त होगी फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद। नाउ इज 35,500, 35,500। तो यहाँ पे हमें फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर, इसलिए नॉमिनल वैल्यू ऑफ द मैन शेयर इज ₹35,500। नेक्स्ट, ए मैन बाय 210 रुपीज शेयर। यहाँ समझने वाली बात है, क्या है? 200 शेयर खरीदे, पर शेयर क्या है? 10 रुपए, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। एट ₹12.50, ये क्या है? मार्केट एज, and receive a dividend of 8% dividend. Find the amount investment by him and the dividend received by him in cash. तो हमें क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट निकालना है और डिविडेंड निकालना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर क्या दिया? 10 रुपए, हमने पहले बताया था। डिविडेंड क्या दे रहा है आपको? 8% दे रहा। मार्केट वैल्यू क्या है? ₹12.50। नंबर ऑफ शेयर इन्होंने कितना खरीदा है? 200। अब कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। अमाउंट इन्वेस्ट क्या किया उन्होंने, है ना, तो नंबर ऑफ शेयर फॉर्मूला पुट करेंगे मार्केट वैल्यू, है ना, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। 200 किया था और 12 रुपए के हिसाब से, तो नाउ वी गेट ₹2500, 2500। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 200 शेयर इक्वल टू 200 इंटू 10। नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से इनका क्या आ गया? 2000, है ना, अमाउंट इन्वेस्ट किया। इसलिए डिविडेंड रिसीव 8%, तो कि किस पे होगा? नॉमिनल वैल्यू पे 8% ऑफ 2000। नाउ वी गेट ₹160, है ना। अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना किया उन्होंने? 2500 एंड डिविडेंड रिसीव्ड ₹160। क्योंकि यहाँ समझने वाली बात है, जब हमने यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टमेंट इस पे निकाला तो हमें नॉमिनल वैल्यू पे क्यों निकाला? बट नॉमिनल वैल्यू अगर हमें डिविडेंड निकालना, किस पे निकालेंगे? हम नॉमिनल वैल्यू पे ही निकालेंगे, समझ गए? इसीलिए हम लोगों ने मार्केट पे भी निकाला और नॉमिनल वैल्यू पे भी निकाला, ठीक है। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% ₹100 share when a person get a dividend of ₹65 by investing ₹1430, given that क्या दे रहा है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर ₹100, डिविडेंड रेट क्या दे रहा? 5% एंड लेट नंबर ऑफ शेयर परचेज X, हमने कितना शेयर खरीदा है उसको X मान। लेट डिविडेंड क्या दे रहा है? ₹65, उनको क्या प्रॉफिट कंपनी की तरफ से मिला। एनुअल डिविडेंड क्या है? इसके लिए हम इस फॉर नंबर ऑफ शेयर नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, हमने फॉर्मूला पुट किया। अकॉर्डिंग टू गिवन क्या दिया? हमने पुट द वैल्यू किया। 65 उनको डिविडेंड दे रहा और नंबर ऑफ शेयर हमने X लिया, वो पुट द वैल्यू एंड फर्दर कैलकुलेट करने पे हमें X इक्वल टू 65 X कितना आ गया? 30। तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर परचेज 30। टोटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना था? ₹1430। तो मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, the total investment of a number of share. Put the value and now the final answer ₹11. Share number 5. Salman buy 50 share on face value ₹100 available at 139. That is market value. मतलब ये क्या है? Market value. अब क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले पुट करते हैं, what is his investment? If the dividend is 7.5% per annum, what will be his annual income? If he want to increase his annual income by ₹150, how many extra shares should he buy, है ना। चलिए क्या दिया? फेस वैल्यू दिया है आपको वन शेयर का ₹100 एंड नंबर ऑफ शेयर इन्होंने दिया है 50। मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर हमने पहले बताया था 132, है ना। सो दैट क्वेश्चन नंबर 1, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर 50 है, हमने क्रॉस किया, है ना। तो 6600 normal multiplication, you got it. Salman investment 6,600 annual. Second number 4 question, if the dividend is 7.5%, what will annual income? Annual income का फार्मूला जो है हम पुट करेंगे, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू बाय शेयर और रेट। हमें सब कुछ दिया हुआ है, पुट द वैल्यू फर्दर कैलकुलेट एंड नाउ वी गेट 375। इसलिए सलमान एनुअल इनकम इज ₹375।
नाउ क्वेश्चन 3 क्या बोलता है फिर, इफ यू वांट टू इंक्रीज हिज एनुअल, मतलब वो अपना एनुअल इनकम बढ़ाना चाहता है रुपीज 150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा, और उसको खरीदना है। तो हमारे पास दिया है इंक्रीज एनुअल इनकम, कितना इतना न्यू एनुअल इनकम, तो 375 उन्होंने पहले ले चुका था और 150 करना है, तो टोटल एनुअल इनकम हमारे क्या निकल गया 525। लेट द न्यू नंबर ऑफ शेयर बाय एक्स, जो हमने नया नंबर ऑफ शेयर लिया है वो हमारा एनुअल डिविडेंड है ना, क्या है हमें पता है, उस फॉर्मूला में हम पुट द वैल्यू करेंगे। तो 525 इज इक्वल टू x इंटू 1.5 अपॉन 100 इंटू 100। नाउ पुट द फर्दर कैलकुलेट किया एंड पुट द वैल्यू, और x का वैल्यू हमारा आ गया 70 है ना, आप करके देखना 70। नाउ x का वैल्यू आ गया इन न्यू नंबर ऑफ शेयर परचेज 70 है ना, टोटल उनके पास 70 शेयर है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा क्या लिया, पहले से 25 लिया, तो 50 लिया था सॉरी, तो 50 एक्स्ट्रा शेयर सलमान सोल्ड बाय, तो 70 माइनस 50 इक्वल टू 20, 20 शेयर उन्हें ज्यादा लेना। चलिए आगे बढ़े। A lady hold 1800 rupees 100 share of a company that pay 50% dividend annually. Calculate her annual dividend if she had bought this share at 14% premium. What percentage return does she get on her investment? तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसको समझना है ना, थोड़ी भाषा अलग है, पकड़ बनानी है। तो नंबर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज रुपीज 100 है, डिविडेंड रेट क्या दे रहा है 15%, एंड नंबर ऑफ शेयर परचेज कितना है 1800 है ना। तो एनुअल डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर एंड रेट ऑन डिविडेंड्स है ना, फॉर द पुट वैल्यू एंड सारी चीजें दी हुई हैं आपको, तो एंड कैलकुलेटेड 27,000, इसलिए एनुअल डिविडेंड कितना हो गया रुपीज 2700। एज शेयर आर बाउट एट 14% प्रीमियम, हमने पहले पॉइंट टू रिमेंबर में देखा था प्रीमियम क्या होता है, उससे समझिएगा मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर है ना, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा प्लस होगा क्योंकि अबव है ना फेस वैल्यू से, तो 100 प्लस 40% अपॉन 100 हमने निकाल लिया है ना, नॉमिनल वैल्यू का 40%, तो ऐड करके टोटल फर्दर कैलकुलेट करेंगे रुपीज 140। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या था, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट 1800 था और नया जो हमारा मार्केट वैल्यू है 140। नाउ रुपीज 25,200 रुपीज 25,25,200। रेट ऑफ रिटर्न परसेंट में निकालना है हमें, रेट ऑफ रिटर्न निकालना, तो डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, पुट द वैल्यू व्हाट इज कैलकुलेटेड। नाउ रेट ऑफ रिटर्न क्या है ना, 10 होल 5 upon 7, 10 होल 5 upon 7। चलिए आगे बढ़े। What's क्वेश्चन नंबर 7, what sum should a person invest in rupees 25 share selling at rupees 36 obtain an income of rupees 720 if the dividend declared is 12%, also find the percentage return on his income। क्या दिया हुआ, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर रुपीज 25 एंड डिविडेंड रेट 50%। लेट नंबर ऑफ शेयर परचेज हम मानते हैं कि x है, मार्केट वैल्यू पर शेयर दिया हुआ 36, एनुअल डिविडेंड निकालते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर करके x की वैल्यू निकाल दें, तो पुट द वैल्यू एंड फॉर देम कैलकुलेटेड। नाउ वी गेट x इक्वल टू 240, इसलिए टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट, नंबर ऑफ शेयर हमने निकाल लिया, मार्केट वैल्यू क्या है 36, फर्दर कैलकुलेटेड। नाउ वी गेट रुपीज 8640, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट रेट निकालना है हमें, तो पुट फार्मूला और उसमें पुट द वैल्यू करेंगे, फर्दर कैलकुलेट और डिवाइड करेंगे। नाउ रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या आ जाता है 8 होल 1 अपॉन 3, कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन 8, अशोक इन्वेस्ट रुपीज 26,400 on 12% rupees 25 shares of a company if he received a dividend of rupees 2475, find the number of share he bought, the market value each share। अब हम देखते हैं क्या दिया, नॉमिनल लिखा हुआ है, यहाँ नॉमिनल होगा है ना, नॉमिनल वैल्यू है ना, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर रुपीज 25, रेट ऑफ डिविडेंड 1-2%, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है 26,400, एनुअल डिविडेंड क्या है रुपीज 2475। लेट द नंबर ऑफ शेयर परचेज क्या किया उन्होंने, हम इसको x मान लेते हैं है ना। एनुअल डिविडेंड इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, एनुअल डिविडेंड की जो फॉर्मूला हमने डाल दिया इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और पुट द वैल्यू, और यहाँ हम वो सारे वैल्यू पुट करके x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे है ना वन साइड। फर्दर वी गेट x इक्वल टू 825 है ना, इसलिए नंबर ऑफ शेयर परचेज अबाउट 825। दूसरे में मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर
तो टोटल इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर है ना, फॉर्मूला है पुट द वैल्यू फर्दर कैलकुलेटेड ₹32. नाउ वी गेट ₹30. बड़ा आसान है, बस क्वेश्चन के शब्द ऐसे हैं कि इसे हम लोगों को समझना है, बारीकी है और अभ्यास से ही आपको पकड़ आएगी, और क्वेश्चन को हमें लिखना कैसे है ये भी यहाँ सिखाया गया है, तो बहुत बारीकी से ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैन इन्वेस्टमेंट ₹4500 इन शेयर ऑफ ए कंपनी व्हिच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड. If ₹100 share are available at a discount of 10%, find the number of share he purchased. His annual income. चलिए let's get start. Nominal value of one share क्या है, 100. Rate of dividend क्या है, 7.5%. And total investment इन्होंने कितना किया है, ₹4500. As the share are purchased at the discount 10%, है ना, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या होगा, डिस्काउंट लिया है तो उनका क्या होगा, माइनस होगा. तो 100 तो वैल्यू है, तो नाउ 100 माइनस 10% ऑफ 100, और हमें मिला ₹90. नंबर ऑफ शेयर परचेज, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, पुट द वैल्यू एंड नाउ यू गेट 50, है ना. तो एनुअल डिविडेंड निकालना है हमें, क्योंकि हिज एनुअल इनकम पूछा, तो पुट द वैल्यू, सारी डाटा हमारे पास है. नाउ फर्दर कैलकुलेटेड हिज एनुअल इनकम ₹375, हमें प्राप्त हो फर्दर. आगे क्वेश्चन 10. अमित कुमार इन्वेस्टमेंट 36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर एट ₹20 प्रीमियम. The dividend is 50% per annum. Fine. The number of shares he his yearly dividend. उनका प्रॉफिट क्या है, the percentage return on his investment. रेट पूछ रहा है. चलिए क्या दिया, नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर 100, रेट ऑफ डिविडेंड 15%, टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000. इन्होंने इतना पैसा लगाया. एज अमित कुमार बाय है द शेयर एट प्रीमियम लिया हुआ उन्होंने 20%, ₹20 है ना, दिया हुआ है. द शेयर एट प्रीमियम, है ना, ठीक है. प्रीमियम का हमने देखा था, पॉइंट टू रिमेंबर याद है. चलिए देखते हैं. मार्केट वैल्यू पर शेयर प्रीमियम है तो ऐड होगा, क्योंकि वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगा, तो ऐड कर दिया. हमारा मार्केट वैल्यू आ गया ₹120. नंबर ऑफ शेयर परचेज, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो हमने फर्दर कैलकुलेट किया. नाउ 300 हमारा आ गया वैल्यू, है ना. अब एनुअल डिविडेंड हम निकालेंगे. पुट द फॉर्मूला, फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, है ना. वैल्यू को पुट किया, फर्दर कैलकुलेशन किया, और वी गेट ₹4,500. अब हमें निकालना है रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है. अब इसमें हम फॉर्मूला में पुट द वैल्यू, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, एंड नाउ वी गेट 12.5%. गॉट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर तिवारी इन्वेस्टमेंट ₹29040 इन 50% ₹100 शेयर एट प्रीमियम ऑफ 20%. कैलकुलेट, है ना, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर बॉट बाय मिस्टर तिवारी. नंबर ऑफ शेयर कितना है, मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इनकम कितना हुआ, द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट भी निकालना है. सारी चीजें पिछला सवाल का ही है, कोई दिक्कत नहीं. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नॉमिनल वैल्यू लिख दिया, रेट ऑफ डिविडेंड 15% है, टोटल इन्वेस्टमेंट 29040. एज मिस्टर तिवारी बाय द शेयर्स एट प्रीमियम लिया है, तो ठीक ऐड होगा. यहाँ परसेंटेज में 20%, मार्केट वैल्यू 100 प्लस 20 ऑफ 100, जो कि नॉमिनल वैल्यू है 100. हमारा फर्दर कितना आ गया, ₹120. नंबर ऑफ शेयर परचेज क्या है, नंबर ऑफ शेयर के लिए फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर. पुट द वैल्यू, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे. नाउ यू गेट 242. एनुअल डिविडेंड हमें निकालना है. पुट द फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, एंड वैल्यू पुट करने के बाद फर्दर कैलकुलेशन करेंगे. नाउ वी गेट ₹3630. बस आपने बॉडी पार्ट समझना है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना. मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज ₹3630. अब रेट पूछ रहा है, क्या था भाई, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है ना, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. पुट द वैल्यू, फर्दर कैलकुलेट. नाउ वी गॉट 12.5%, इसलिए परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 12.5%. नाउ वी आगे बढ़ते हैं. ए मैन बाय शेयर एट द पार वैल्यू ऑफ ₹10. यील्ड का हमने समझाया था, रिटर्न 8%, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ए ईयर. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर बॉट इफ ही रिसीव्ड द डिविडेंड ऑफ ₹300. अब क्या दिया हुआ लिखते हैं, नॉमिनल वैल्यू MB और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹10. रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया, 8%. एनुअल डिविडेंड उनको कितना मिला, 300. लेट नंबर ऑफ शेयर परचेज, हमने नंबर ऑफ शेयर X मान दिया. एनुअल डिविडेंड निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, पुट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, और यहाँ पे हमारा X का वैल्यू निकल जाएगा. फर्दर कैलकुलेशन वी गेट 375, इसलिए नंबर ऑफ शेयर बॉट 375.
बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 30, मैन इन्वेस्टमेंट रुपीज 8,800 ऑन बाय शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, है ना। दिस वैल्यू इज एट प्रीमियम दे रहा ऑफ 10%, मतलब मार्केट वैल्यू 10% बढ़ा। इफ ही अर्न रुपीज 1200 एट द एंड ऑफ ईयर एज डिविडेंड, फाइन। क्या क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन देना है द नंबर ऑफ शेयर हैज इन दिस कंपनी, इनका क्या है डिविडेंड परसेंटेज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड क्या दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 100, एनुअल डिविडेंड इनको कितना मिला 1200, टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है 18,800 एट द शेयर वेयर बॉट एट प्रीमियम, इन्होंने 10% प्रीमियम पे बाय किया है, यानी कि फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है। रेट ऑफ डिविडेंड 8% है ना, मार्केट वैल्यू पर शेयर प्रीमियम है, तो हमने 100 प्लस 10% ऑफ 100 नॉमिनल वैल्यू का 10%, नाउ यस रुपीज 110, हमारे मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ शेयर पर शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 8,800 प्लस हमारा मार्केट वैल्यू हो गया फॉर द पुट द वैल्यू एंड वी कैलकुलेट नाउ गेट 80 है ना 80, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर द मैन हैज इन द कंपनी 80। एनुअल डिविडेंड हमको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही है, पुट द वैल्यू, हमने वैल्यू पुट कर दिया और चूंकि रेट हमने लिया हुआ रेट ऑफ डिविडेंड आर माना हुआ है, सो पुट करेंगे और यहीं से हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। पुट वैल्यू करने के बाद कैलकुलेशन करके हम आर का वैल्यू, नाउ वी गेट आर इक्वल टू 15%, इसलिए डिविडेंड परसेंट पर शेयर इज 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। A man investment rupees 45,000 in 15% rupees 100 share quoted as rupees 125, quoted मतलब market value. When the market value of this share rose to rupees 140, he sold some share just enough to rise rupees 8400. Calculate the number of shares he still holds, कितना रखा उन्होंने डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस शेयर, है ना। चलिए क्या दिया हुआ, गिवन दैट नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर 100 दिया हुआ, रेट ऑफ डिविडेंड 15% एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इनका 45,000, मार्केट वैल्यू पर शेयर रुपीज 125। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, नंबर ऑफ शेयर परचेज एट एमबी ऑफ रुपीज 125, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर। फर्दर पुट द वैल्यू करेंगे एंड कैलकुलेशन के बाद वी गेट 360, है ना, इसलिए नंबर ऑफ शेयर मैन हैज इन द कंपनी इज 360। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ शेयर सोल्ड, उन्होंने जो सोल्ड किया क्या है रुपीज 140, देखिए आपको दिया हुआ है ना, सोल्ड किया 140, अमाउंट राइज फ्रॉम सेल्स रुपीज 8400, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, है ना, तो जो अमाउंट शेयर सोल्ड किया है और डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, नाउ वी गेट 60, है ना, तो कितना शेयर सेल की 60, नंबर ऑफ शेयर रिमेनिंग टोटल शेयर, और जो सेल किया उन्होंने हमने माइनस किया 360 माइनस 60, तो हमारा 300 शेयर बचा हुआ है। नाउ क्वेश्चन 2 क्या पूछा, एनुअल डिविडेंड, किस पे, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू एंड रेट ऑफ डिविडेंड 350, 15 क्वेश्चन दिया, 100 हमारा नॉमिनल वैल्यू है। फर्दर कैलकुलेट और वी गेट रुपीज 45 डिविडेंड, इसलिए डिविडेंड ड्यू टू द मैन ऑन द रिमेनिंग शेयर रुपीज 4500, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। Question number 15. As I own 560 share of a company, this face value of each share is rupees 25. The company declare a dividend of 9% calculation. The dividend that Ajay will get, है ना, the rate of interest on his investment if Ajay has paid rupees 30 for each share, है ना, मांग रहा है। गिवन दैट क्या दिया हुआ है देखते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, अब तो क्वेश्चन आपको पकड़ में आ गई होगी, है ना, नॉमिनल वैल्यू हमने डाल दिया, रेट ऑफ डिविडेंड डाल दिया 9% एंड नंबर ऑफ शेयर ओन 560, है ना। क्वेश्चन नंबर एनुअल डिविडेंड पूछ रहा है, पुट द वैल्यू एंड फॉर द, हम कैलकुलेशन के लिए सारा वैल्यू पुट करेंगे, नाउ वी गेट 1260, इसलिए डिविडेंड दैट एज आई विल गेट रुपीज 1260, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा हम फास्ट बताते हैं कि कैलकुलेट इट, सो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन है, ये नॉर्मल है, आप कर सकते हैं, तो हमें सीधा आंसर पे बात करते हैं, रुपीज 1260 उनको डिविडेंड साल का प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोलता है द मार्केट वैल्यू पर शेयर रुपीज 30 है ना, तो टोटल इन्वेस्टमेंट उनका नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर 560 इंटू 30, हमारा टोटल आ गया रुपीज 1680। ये किस लिए, हमें इन्वेस्टमेंट पे रेट निकालना है, इसीलिए चाहिए। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, पुट द वैल्यू एंड फर्दर कैलकुलेशन से नाउ वी गेट 7 होल 1/2, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अजय इन्वेस्टमेंट क्या है 7 होल 1/2, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 16, ए कंपनी विथ 10,000 शेयर
of nominal value of rupees 100, declare an annual dividend of 8% to the shareholder, calculate the dividend he received and the percentage return on his investment. And further calculation, calculate the total amount of dividend paid by the company. And Ramesh bought 90 share of the company at rupees 150 per share. क्या दिया हुआ देखते हैं, नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर 100 दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड 8%, नंबर ऑफ शेयर उन्होंने खरीदा 10,000, नंबर ऑफ शेयर रमेश बॉट 90, है ना। तो एनुअल डिविडेंड के लिए नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, है ना, पुट द फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और फर्दर कैलकुलेशन से नाउ वी गेट रुपीज 80,000, इसलिए द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी 80,000 नाउ वी गेट। अब सेकंड क्वेश्चन, एनुअल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर, वही फार्मूला है, पुट द वैल्यू 90 पे क्या है, 90 शेयर उनको क्या मिल रहा है ना, तो रुपीज 720 इन, इसलिए द डिविडेंड रिसीव्ड बाय रमेश रुपीज 720, the total investment of Ramesh is 90 into 150 per share बता रहा ना, तो कितना हो गया कॉस्ट रुपीज 13,500। टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया, तो रेट निकालना है, तो डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट पे हम फर्दर फार्मूला पे पुट द वैल्यू करेंगे और कैलकुलेशन के बाद वी गेट 5 और 1/3, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ रमेश इन्वेस्टमेंट 5 और 1/3। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, ए कंपनी विद 500 शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 120 डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%, calculate. Question 1, the total amount of dividend paid by the company. Annual income of Mr. Sharma who hold 80 shares of the company. And if the return percent of Mr. Sharma from his share is 10%, find the market value of each share, है ना। मोस्टली 3 क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर रुपीज 120, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 15%, और आपका सबसे नंबर ऑफ शेयर है 500, नंबर ऑफ शेयर मिस्टर शर्मा बॉट 80, है ना, खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 1 का एनुअल डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इनटू रेट ऑफ टाइम, दिस इज द फार्मूला। हम फर्दर पुट वैल्यू करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी गेट रुपीज 9,000, इसलिए द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 9,000। अब सेकंड क्वेश्चन, एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा, है ना, मिस्टर शर्मा का क्या है, तो नंबर ऑफ शेयर की बात आती है, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर रेट ऑफ डिविडेंड फॉर्मूला है, पुट द वैल्यू करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे रुपीज 1440, इसलिए द डिविडेंड रिसीव्ड बाय मिस्टर शर्मा रुपीज 1440। रेट निकालना है, थर्ड क्वेश्चन, रेट ऑफ एनुअल इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 10%, है ना, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ परसेंटेज, पुट द वैल्यू, नाउ वी फॉर द कैलकुलेशन वी गेट रुपीज 180, इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन मिस्टर शर्मा इन्वेस्टमेंट रुपीज 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बाय इन्वेस्टिंग। देखिए, हमने सारा क्वेश्चन इसमें कराने का पर्पज ये है कि आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए। ये चैप्टर आपके लिए फर्स्ट टाइम है, सो दैट बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है भाषा को समझने में और क्वेश्चंस को राइट डाउन करने में बॉडी पार्ट के लिए, तो ये एक हल्का सा हिंट है और आपको रिवीजन और खुद मेहनत से इस चीजों को करना है। तो एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से आपने समझना और करना है, हिंट के तौर पर आपको पूरा बताएगा। बाय इन्वेस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 18, फर्दर इन्वेस्टिंग रुपीज 7500 इन ए कंपनी पेइंग 10% dividend in an income of rupees 500 is received, what price is paid for each rupees 100 share, है ना। given that क्या दे रहा है, 1 शेयर दे रहा 100, रेट ऑफ डिविडेंड क्या दे रहा 10%, एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने क्या 7500, एनुअल डिविडेंड 500 है, लेट द नंबर ऑफ शेयर परचेज X, हमने X मान लें। तो एनुअल डिविडेंड का हमारा फॉर्मूला है, ज्यादातर यही सवालों में है, तो आप यहाँ पे सारी चीजें हैं फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, X को भी पुट कीजिए और नाउ फर्दर कैलकुलेशन से आपका X का वैल्यू आ जाता है, X इक्वल टू 50, तो इसलिए नंबर ऑफ शेयर परचेज कितना होगा 50 होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ई शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर, है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर भी है, पुट द वैल्यू, नाउ वी गेट रुपीज 150, इसलिए प्राइस पेड फॉर ई शेयर इज रुपीज 150। नेक्स्ट, man buy 410 rupees share at premium, देखिए भाषा कुछ में 410 rupees share at premium पे दे रहा of rupees 2.50 of each share, premium है। if the rate of dividend is 8%, find his इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेट पूछा है, इसका हमने पहले ही बताया था पॉइंट टू रिमेंबर में। तो नॉमिनल वैल्यू हमने लिख दिया 10%, रेट ऑफ डिविडेंड 8%, नंबर ऑफ शेयर 400, एज द मैन बाय द शेयर एट प्रीमियम रुपीज 2.50, है ना। अब मार्केट वैल्यू क्या हुआ 10 प्लस 2.50, तो कितना आ गया हमारा आंसर रुपीज 12.5, 50%। टोटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर है, पुट द वैल्यू फॉर द कैलकुलेटर वी गेट रुपीज 5000, इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मैन रुपीज
5,000. अब सेकंड क्वेश्चन एनुअल डिविडेंड निकालते हैं. वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. पुट द वैल्यू फर्दर कैलकुलेट. नाउ वी गेट ₹320. इसलिए द डिविडेंड रिसीव्ड कितना हो गया? 320. थर्ड एलिमेंट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. हम अब रेट का फॉर्मूला लेंगे, पुट द वैल्यू करेंगे डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. हमें सब वैल्यू हमारे पास है. पुट द वैल्यू एंड नाउ वी गेट 6.4%. इसलिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6.4%. फर्दर कैलकुलेशन करें. क्वेश्चन 20. A man investment ₹104 in 6% share at ₹104 and ₹7,440 in 10.4% shares at ₹143. How much income would get in all? क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है. ये एक भाषा है. चलिए इस भाषा को ब्रेकडाउन करते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या दे रहा? 104. और ये भी दे रहा मार्केट वैल्यू 2 दे रहे हैं. टोटल इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने 2 किया हुआ है ना. उसके हिसाब से लिखा हुआ. रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको अलग अलग मिल रहा है 6% और 10.4%. समझने वाली बात है. मैन इन्वेस्टमेंट मतलब पहला इन्वेस्टमेंट इनका इतने रेट और इतने डिविडेंड से, और दूसरा इन्वेस्टमेंट हाउ मच इनकम वुड बी गेट. दोनों का एड ऑन कर देंगे. तो एज नॉमिनल वैल्यू इज नॉट गिवन, तो लेट नॉमिनल वैल्यू पर शेयर क्या मान लेते हैं हम? 100 रुपए इन बोथ केस. दोनों केस में हम 100 रुपए मान. फर्स्ट केस क्या बोलता है? नंबर ऑफ शेयर, टोटल इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू पर शेयर हमारे को आ गया 100. एनुअल डिविडेंड निकाल लेंगे क्योंकि यही प्रॉफिट है. प्रॉफिट की बात हो रही है. फर्दर पुट द वैल्यू करेंगे एंड कैलकुलेशन से हमारा मिल गया ₹600. पहले केस में हमें एनुअल डिविडेंड 600. सेकंड केस देखते हैं. नंबर ऑफ शेयर वही है, टोटल इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू यहाँ चेंज हो जाता है, इन्वेस्टमेंट वही है, तो हमारा आ गया 80 है ना. 80. एनुअल डिविडेंड क्या है? नंबर ऑफ शेयर है ना, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड. पुट द वैल्यू, क्योंकि डाटा हमारे पास सभी है, एंड फर्दर कैलकुलेट एंड वी गेट ₹82. इसलिए टोटल इनकम फर्स्ट केस एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट दोनों को हमने ऐड किया एंड नाउ इज द फाइनल आंसर ₹140. Got it? Question number 22. Company has share of 7% at ₹116 and दूसरी कंपनी का है 9% at ₹145 respectively. In which of share would the investment be more profitable? ये कैलकुलेशन करना है. मार्केट वैल्यू हमारे पास दोनों है, ठीक है. रेट ऑफ डिविडेंड भी हमारे पास दोनों है एंड नॉमिनल वैल्यू नहीं दिया है, तो नॉमिनल वैल्यू हम कितना मान लेंगे दोनों केस के लिए? ₹100. फर्स्ट वही सवाल है, सेम पैटर्न है ना. इनकम ऑन इतना परसेंट, 7% दिया हुआ है तो 7 हो गया. अब इस फॉर्म में लगते हैं कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम उसको बना देते हैं. पर शेयर का हम इनकम निकाल लेते हैं. इनकम ऑन ₹7/116. इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया. सेकंड केस के लिए हमने इक्वेशन 2 बना लिया है ना. एंड नाउ एज पर इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि हमारा टोटल सेल्स भी नहीं दिया हुआ है ना, तो अब दोनों केस में देखा जाए तो हम इसका फैक्टराइजेशन को बराबर, इसको हम क्या करेंगे? दोनों मतलब आपको डिनोमिनेटर को इक्वल कर. अब देखिए फर्स्ट इसको हम 5 से बहुत ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. दोनों का हमारा क्या आ गया? 35/580 और 36 अपॉन 580. बेस सेम है, ऊपर का कम हो जाता है, सो दैट है ना. इसलिए सिंस 35 इज स्मॉलर देन 36 इनकम है ना, therefore investment in second case, that is 9% at ₹145 is more profitable than the investment in first case. क्लियर हुआ? क्योंकि सेकंड केस वाला जो है इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल है. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है? विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? 6% ₹100 शेयर एट 120 और 8% ₹10 शेयर एट ₹15 है ना. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है. रेट ऑफ डिविडेंड इज 6% एंड 8% दिया हुआ है, ठीक है. इनकम ऑन ₹120 तो है ना, 6% कितना होगा पर शेयर? 6 रुपए. इनकम ऑन 1 शेयर कितना होगा? 6/1. 6 रुपए तो हमें मिला है, वही हमने इक्वेशन 1 इसको बना दिया. एंड सेकंड केस का भी हमने इसको एज इट इज इक्वेशन 2 बना एज पर इक्वेशन 1 एंड 2. फिर हम इसका क्या करेंगे? वो इक्वल करेंगे, फैक्टराइजेशन को इक्वल करेंगे. एंड इस प्रोसेस में हम पहले इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और नेक्स्ट वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ऊपर हमारा क्या आ गया? 15/300, 16/300. इसलिए सिंस हमारा 15 is smaller than second income, therefore investment in second case, that is 8% ₹10 share at ₹15 is more profitable than the investment in first case. Clear है? बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं. A man investments ₹100, 10,080 in 6% ₹100 shares at ₹112. Point is annual. When the share fall to 96, he sell out the proceed in 10% ₹10 shares at ₹8.
फाइंड द चेंज इन हिज एनुअल इनकम, उसके एनुअल इनकम में क्या चेंज है। तो फर्दर वो पुट द सारा वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है शब्दों से, तो उसको हम बाहर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू 100। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 10,080। मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या है 112। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6%। नंबर ऑफ शेयर टोटल इन्वेस्टमेंट बाय एमबी पर शेयर, पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट फॉर द 90 हमारा आंसर। एनुअल डिविडेंड के लिए हम फार्मूला लगा देंगे, है ना। एनुअल डिविडेंड का फार्मूला नंबर ऑफ शेयर नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, है ना। पुट द वैल्यू एंड फर्दर कैलकुलेट। इसलिए इनकम कितना आ गया एनुअल इनकम ₹540। लेट कैलकुलेट एनुअल इनकम ऑफ हिज न्यू इन्वेस्टमेंट, है ना। द सेलिंग प्राइस ऑफ मेंशन 96। मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ न्यू शेयर ₹8। nominal value per share of new share is ₹10. Rate of dividend of new share 8%। क्वेश्चन में चीजें दी हुई है वो तो चेक। सेलिंग प्राइस ऑफ 90 शेयर्स कितना आ गया 90 into 96, है ना। तो हमारा फर्दर आंसर आ गया कैलकुलेशन के बाद 8640। टोटल इन्वेस्टमेंट इन न्यू शेयर ₹8640। इसलिए नंबर ऑफ शेयर टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, इससे हम पुट द वैल्यू करके कैलकुलेट कर लेंगे 1080 नंबर ऑफ शेयर। अब एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला लगाया और सारे हमारे वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हमने ले लिया एंड फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। नाउ वी गेट ₹1080 जो हमारा है इसके बराबर से इन। इसलिए चेंज इन एनुअल इनकम इक्वल टू 1050 माइनस 540 इक्वल टू ₹54। एनुअल इनकम इंक्रीज बाय ₹54। Question 21. Sachin invest ₹8500 in 10% ₹100 share at ₹170. He sells the shares when the price of a share rise by ₹30. He invests the proceed in 12% ₹100 share at ₹125. Find. Question क्या बोलता है find share proceed the number of ₹125 share he buy and the change in of मतलब ये डेवलप कर सकता है change in his annual income। ठीक है। Now we get market value 1 शेयर ₹170। टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया ₹8500। नंबर ऑफ शेयर टोटल इन्वेस्टमेंट बाय अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर 8500 अपॉन 170। नाउ वी गेट 50। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर 170 प्लस 30, है ना, जो दिया हुआ क्वेश्चन में ₹200। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 50 शेयर नंबर ऑफ शेयर एसपी ऑफ 1 शेयर 50 into 200। नाउ वी गेट 10,000, है ना। सेकंड क्वेश्चन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर ₹125। इसलिए नंबर ऑफ शेयर टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, है ना। नाउ वी गेट 80। द चेंज इन हिज एनुअल इनकम क्या होता है एनुअल डिविडेंड ऑफ 10% ₹100 शेयर एट ₹170 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर एंड रेट ऑफ डिविडेंड। सारा वैल्यू हम पुट करेंगे एंड नाउ वी गेट ₹5। एनुअल डिविडेंड फ्रॉम 12% ₹100 शेयर्स एट ₹125। यहाँ पे भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे और नाउ वी फाइनल कैलकुलेशन के बाद वी गेट ₹960। इसलिए चेंज इन एनुअल इनकम इज 960 माइनस 500 इज इक्वल टू डिफरेंस हमारा क्या आ गया ₹460। दैट इज द आगे बढ़। A person invests ₹4368 and buys certain ₹100 share at ₹91. He sells out share worth ₹2400 when they have rise to ₹95 and remainder when they have fallen to ₹85. Find the gain or loss on the total transaction। तो क्या दे रहा हमें नॉमिनल वैल्यू दे रहा ₹100। टोटल इन्वेस्टमेंट दे रहा है 4368। मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इज ₹91। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पर शेयर। फर्दर वी कैलकुलेट 48 आ गया नंबर ऑफ शेयर व्हाट फेस वैल्यू, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू पर शेयर, तो हमारे यहाँ भी आ गया 24, है ना। एंड द पर्सन सोल्ड 24 शेयर एट ₹95, है ना। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 24 शेयर नंबर ऑफ शेयर हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया 24 into 95। नाउ वी गेट ₹2280। नंबर ऑफ रिमेनिंग कितना हो गया वही 24 बेच दिया तो 48 माइनस 24 24 हो गया। द पर्सन सोल्ड 24 शेयर एट 85, है ना। क्वेश्चन में दे रहा है द सेलिंग प्राइस रिमेनिंग ऑफ नंबर ऑफ शेयर इनटू एसपी ऑफ 1 शेयर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड नाउ वी गेट ₹2040, है ना। फर्दर कैलकुलेशन इसलिए टोटल वैल्यू की ना दोनों का हम ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा टोटल वैल्यू आ गया 4320, है ना। टोटल गेन और लॉस क्या हो गया सेलिंग वैल्यू हमारे पास है माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इसलिए सेलिंग वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट हमारा ज्यादा है तो हमें क्या हो गया लॉस हो गया,
है ना। फर्दर आप माइनस करके 4320 माइनस 46 तो कितना आ गया -48। इसलिए एज न्यू शेयरिंग वैल्यू इज लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, देयर इज अ लॉस ऑफ ₹48 ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। Question 23, by purchasing ₹50 share for ₹80 each, a man get 4% profit on his investment. What rate percent is company paying? What is his dividend if he buy 200 share? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं। Let the rate of percent company is paying at percent. हमने dividend on one share ₹50, X% of 50, तो हमारा x/2 आ गया। फर्दर कैलकुलेट करने से इज प्रॉफिट ऑन वन शेयर इक्वल टू 4% ऑफ ₹80, ये आ गया 16/5 एज पर द गिवन। डेटा है कि ये दोनों बराबर क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। तो हमारा क्या हो गया, x/2 इक्वल टू 16/5। तो x की वैल्यू हम फर्दर कैलकुलेशन से हमारा आ जाता है x इक्वल टू 6.4। इसलिए रेट परसेंट कंपनी इज पेइंग 6.4। एनुअल डिविडेंड हमें निकालना है, सारा वैल्यू हमारे पास है। नाउ वी पुट द वैल्यू एंड फर्दर कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी गेट ₹640 एनुअल डिविडेंड। इसलिए डिविडेंड इफ वी बाय 200 शेयर ₹640। आगे बढ़ते हैं। 27 rupees 100 share of a company are sold at a discount of ₹20. If the return on its investment is 15%, find the rate of dividend declared. Let the rate of dividend be X. Dividend of one share of ₹100, X% of ₹100, तो हमारा आ गया, ठीक है ना, X% into 50 equal to X आ जाएगा, है ना। ठीक है, since the share are sold, X% of 100 का रहेगा तो ये हमारा पे यहाँ पे X आ जाएगा। सो यहाँ पे ये 100 होगा, यहाँ पे 100, है ना। Since the share are sold at a discount of ₹20, market value of one share is 100 है, माइनस कर दिया तो हमारा मार्केट वैल्यू 80 आ गया। रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना है ना। रेट ऑफ रिटर्न के लिए डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट एज फॉर द गिवन हमने वैल्यू पुट कर दिया। हमारा डिविडेंड आ गया 8/80 इंटू हमने क्या किया, फर्दर एक्स की वैल्यू आ गई, फर्दर कैलकुलेशन है 12%, इसलिए रेट ऑफ डिविडेंड 12%। Now, a company declare a dividend of 14%, find the market value of ₹50 share if the return on the investment was 10%. Given that, let the market value of one share is ₹50. Up put the value dividend of one share of the ₹100, 14% of 50, so 14% 7, है ना। तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 एज पर द गिवन, है ना। हमने पुट द वैल्यू किया एंड फॉर द कैलकुलेशन नाउ वी गेट x इक्वल टू ₹70। इसलिए मार्केट वैल्यू ऑफ इज ₹50 शेयर इज 70। मतलब क्या 29 आ गया। ये कंपनी विथ 10,000 शेयर ऑफ ₹100 each declare an annual dividend of ₹5%. Now question क्या होता है, what is the total amount of dividend paid by the company? What would be annual income of a man who has 72 shares in the company? If he received only 4% on his investment, find the price is paid for each share. तो अभी क्या दिया, नॉमिनल वैल्यू 100 दिया, रेट ऑफ डिविडेंड 5% ऑन नंबर ऑफ शेयर। हम एनुअल डिविडेंड के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। फर्दर पुट द वैल्यू करेंगे। नाउ कैलकुलेशन से हमारा आता है वैल्यू ₹50,000। इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी ₹50,000। नंबर ऑफ शेयर 72, एनुअल डिविडेंड हमने पुट द वैल्यू किया and now we get ₹360. इसलिए एनुअल इनकम ऑफ ए मैन विद 72 शेयर इज ₹360। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, लेट प्राइस पेड बाय मैन फॉर इस शेयर भी हमने x मान लिया, है ना। इज टोटल इन्वेस्टमेंट 72x टोटल इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर एंड उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर दो शेयर। अब हमें रेट की वैल्यू, रेट ऑफ परसेंट निकालना है, the dividend upon investment into 100 as per given। हमने वैल्यू पुट किया, जो भी वैल्यू हमने निकाला है वैल्यू को पुट किया एंड फर्दर कैलकुलेशन से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। नाउ इज 125। इसलिए प्राइस पेड बाय मैन फॉर इच शेयर इज ₹125। 30 नंबर क्वेश्चन, ए मैन सोल्ड सम ₹100 share paying 10% dividend at a discount of 20% and investment the proceed in ₹100 share paying 16% dividend quoted at ₹80 and thus increase his income by ₹2,000. Find the number of shares sold by him, है ना, कितना शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय हिम by the man is X।
डिमांड सोल्ड द शेयर एट ए डिस्काउंट कितने पे 25%, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 100 माइनस 25%, 100 इक्वल टू 100 माइनस 25, नाउ गेट आंसर ₹75। उन्होंने सेल प्रोसीड ₹75 इंटू एक वो ना नंबर ऑफ शेयर number of rupees 100 मतलब 16% शेयर परचेज बाय द मैन। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, ये होगा 100 रुपीज और 16% की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान देना है ना। 100 रुपीज एंड 60% अलग है शेयर परचेज बाय द मैन। तो ये हमारा टोटल चला गया 75 into x upon 80। फर्दर हमारा we got 15 into x upon 16 annual dividend of previous share, number of share into nominal value per share into rate of dividend। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। now we get rupees 10x है ना। annual income from new share, number of share and है ना nominal value per share, rate of dividends। हमने इसके हिसाब से वैल्यू यहाँ जो हमारे पास पुट किया। now we get rupees 15x as for given है ना, दोनों का डिफरेंस देना इंक्रीज कर गया 2000, डिफरेंट है। x का वैल्यू क्या आ गया 400, इसलिए नंबर ऑफ सोल्ड बाय द मैन इज 400, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय द मैन इज 400। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन इन्वेस्ट with ₹6750, partly his share in 6% at ₹140 and partly in share of 5% at ₹125। If his total income is ₹280, how much has his investment in each share? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इन्होंने इतने पार्ट में शेयर को बांटा है और उतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हाउ मच है इन्वेस्टमेंट इन ईएन से, टोटल दे दिया बट अलग अलग शेयर में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है ना। चलिए लेटेस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मैन इन शेयर कितना है देखते हैं। केस 1 क्या है, शेयर ऑफ 6% एट ₹1440 बी एक्स, एंड केस 2 हम मानते हैं शेयर ऑफ 5% एट ₹125 बी। हमारा जो टोटल है 670 माइनस एक्स है ना, टोटल अमाउंट में एक्स, एक को हमने एक्स माना और दूसरे को टोटल में से माना। इनकम ऑन वन शेयर ऑफ ₹140, 6% ऑफ 100 इक्वल टू 6, इसलिए इनकम ऑन एक्स फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे एक्स 6 upon 140 into x है ना। तो हमारा आ जाता है 3 into x upon 70। इनकम ऑन वन शेयर ऑफ ₹125, 125 वाले पे कितना होगा 5% ऑफ 105 है ना। इनकम ऑन हमारा जो है टोटल अमाउंट 6750 माइनस x, तो उस पे हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी पुट द वैल्यू एंड गेट इट 1/25 into 6750 माइनस x, क्योंकि द टोटल इनकम ऑफ द मैन इज, इन दोनों का जो टुकड़ों में हमारा अलग अलग पे इनकम आया है वो कितना, दोनों को ऐड करने के बाद इतना है 280। तो हम दोनों को ऐड करेंगे एंड इज इक्वल टू 280 है ना। गॉट इट। यहाँ पे क्योंकि टोटल इनकम ऑफ द मैन ने अलग अलग इनकम निकाल लिया, ठीक है, हमने अलग अलग इनकम निकाल लिया टोटल एंड इन दोनों को जोड़ दिया, जो कि वही क्वेश्चन बोल रहा है 280 इनकम टोटल इनकम। तो अब हम एज फॉर गिवन पुट द वैल्यू करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे फर्दर। नाउ वी गेट, यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 3500, इसलिए 6750 माइनस x है तो 350 को माइनस करेंगे। नाउ वी गेट 3250, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन 6% शेयर एट ₹140 इक्वल टू ₹3500 एंड इन्वेस्टमेंट इन 5% शेयर एट ₹125 इज ₹3250 है ना। ये फर्दर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केस 1 और केस 2 के हिसाब से आप x में वैल्यू बनाएंगे और चूंकि दोनों पे हमें ये अमाउंट दे रहा 280 जो कि हमारा टोटल इनकम है, तो दोनों इनकम को हम ऐड करते हैं, वही बता रहा है कि ₹280 इनकम है एंड फर्दर आप कैलकुलेट के सॉल्व करेंगे। नाउ वी गेट डिफरेंस करेंगे, पुट द वैल्यू आ जाएगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन 32, डेबिट ₹20,304 into 2 parts such that if one part investment in 9% ₹50 shares at 8% प्रीमियम है ना, समझने वाली बात है, ये पूरी बात है। एंड अदर पार्ट इन्वेस्टमेंट 8% ₹25 शेयर एट 8% डिस्काउंट, एक प्रीमियम है एक डिस्काउंट है ना। तो लेट स्टार्ट द गिवन इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर, हमने केस बनाया सर उसी की तरह, पिछला सवाल देखा था हमने उसी का। शेयर ऑफ 9% एट ₹50 बी एक्स एंड दूसरा हमने क्या कर दिया, शेयर ऑफ 8% एट ₹25 बी 20 माइनस 20,304 माइनस एक्स, इसलिए उस पे हमने 9% ऑफ 50 शेयर और एट 8% प्रीमियम पे है ना। प्रीमियम से आप मार्केट वैल्यू हमको निकाल रखेंगे, तो ये प्रीमियम क्या हो गया, कॉस्ट बढ़ के है ना, अबव होता है मार्केट वैल्यू। तो 50 प्लस 8% ऑफ 50 इक्वल टू 54, ये समझने वाली बात है, यहाँ पे प्रीमियम वाली बात है ना। इस इनकम ऑन वन शेयर ऑफ ₹54 इक्वल टू 9% ऑफ ₹50 कितना हो गया 4.50, इसलिए इनकम ऑन x इक्वल टू है ना, फर्दर हम पुट वैल्यू करेंगे एंड नाउ वी गेट ₹112 into 8% of रुपीज इतना शेयर और एट 8% डिस्काउंट पे देना, तो मार्केट वैल्यू निकालना है तो मतलब माइनस हो एंड नाउ वी गेट डिस्काउंट ₹23। इनकम ऑन वन शेयर ₹23, 8% ऑफ 25 2, इसलिए इनकम ऑन रुपीज है ना, जो हमने इतना माइनस करके इनका वैल्यू लिखा तो 2/20 into
20,304 minus X. अब चूंकि दे रहा है सेम प्रोसेस है, बट द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू, है ना, दोनों इक्वल दे रहा है यहाँ पे, देन द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, यहाँ पे दिया ना इक्वल, सो दैट ये दोनों चीजें पार्ट 1 इक्वेशन 2 बराबर हैं। हमने इनको कर दिया एज फॉर गिवन, और हम सॉल्व करेंगे, फर्दर कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी x इक्वल टू 10368 हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसलिए तो हमारा दूसरा केस क्या था, 20,000 माइनस 20,304 माइनस दैट, तो हमने माइनस कर दिया पहले x की वैल्यू रख के, नाउ वी गेट 9,936। हमारा इन्वेस्टमेंट इन 9% रुपीज 50 शेयर है, रुपीज 54 कितना आ गया 10,368, एंड इन्वेस्टमेंट इन 8% रुपीज 25 शेयर एट रुपीज 23, 9,936, है ना। ये दोनों फाइनल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट केस 1 केस 2 करके करेंगे, भाषा को समझेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया था, दोनों का ऐड करके प्रॉफिट दिया था, और अभी क्या दिया, ये दोनों में बराबर। इस रिलेशन के हिसाब से ये हम पुट द वैल्यू करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। नाउ यहीं पे हमारा कुछ चैप्टर खत्म होता है, कुछ हम शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर हमारा खत्म होता है, कुछ हम क्विक टिप्स ऑफ सक्सेस देखेंगे। क्वेश्चन को ऑलवेज रिमेंबर, नॉमिनल वैल्यू इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिविडेंड। हमें नॉमिनल वैल्यू से ही डिविडेंड को करें, नॉट मार्केट वैल्यू, है ना। क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन डिविडेंड परसेंट एंड रियल रिटर्न। ये रेट है एंड डिविडेंड है ना। केयरफुल, राइट, क्लियर एंड स्टेप बाय सॉल्यूशन टू स्कोर मैक्सिमम। आपको एक बॉडी पार्ट सवाल का बताया गया, स्टेप बाय स्टेप से आपको अच्छे मार्क्स मिले। रिमेंबर, इन एग्जाम 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है इन सेक्शन बी में आते हैं, और 1 मार्क्स इन एमसीक्यूज के आते हैं इस चैप्टर से। इस बात को आपको दिमाग में रहता है, 1 मार्क्स ये। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड जो है, यूज मार्केट वैल्यू इंस्टेड ऑफ नॉमिनल वैल्यू फॉर डिविडेंड कैलकुलेशन। हमने यहाँ पे भी बताया, और ये चीज भी आपको बता रहे हैं। Forgetting to multiply by the number of share, है ना। misinterpreting the dividend percent and yield percent, इसको बड़ा कंफ्यूज होता है, इसको ध्यान में रखना। दोनों अलग चीज है, ये रेट की बात होती है और ये डिविडेंड।